My lovely students, welcome to Orthological. In this session, we'll be discussing some memory-based DI sets from last year XGMT examination. तो as you all know कि pattern क्या है XGMT का DI का कि in DI in general in previous years they've asked 15 questions in DI section and these 15 questions are to be attempted in 30 minutes. Last year there were 4 DI sets, one DI set of 4 questions, one more of 4 questions, one of 5 questions and one DI set with 2 questions. So we'll be discussing 2 DI sets in this session. मेमोरी बेस्ड ही है क्योंकि तो जितना अवेलेबल है उतना ही डिस्कस कर पाएंगे. तो 2 DI सेट्स विल बी डिस्कसिंग एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग कि मेनी क्वेश्चंस आर वेरी डूएबल. सो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड यू लाइक द कंटेंट देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल और कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. ठीक है, फर्स्ट सेट लेते हैं. तो द फर्स्ट सेट is as follows. A professor keeps data on students tabulated by performance and sex of the student. The data is kept on a computer disk, but unfortunately some of it is lost because of a virus and only the following could be recovered. फिर performance based average, good and excellent for male and female and total कुछ data given है और बाकी data के लिए हमें some information is given. These are the 5 questions. ठीक है, panic buttons were pressed but to no avail. An expert committee was formed which decided that the following facts were self-evident. फैक्ट्स क्या है हमारे? हाफ द स्टूडेंट्स वर ईदर एक्सीलेंट और गुड, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल्स एंड 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोथ फीमेल एंड एक्सीलेंट. सो दैट वी हैव टू सॉल्व थ्रू द क्वेश्चन. पहले अपना जो डेटा अब रिमेनिंग है उसको फिलअप करते हैं. तो इन्फॉर्मेशन हमें 3 इन्फॉर्मेशन एडिशनली गिवन है कि हाफ द स्टूडेंट्स वर ईदर एक्सीलेंट और गुड, बट टोटल स्टूडेंट्स क्या है अभी तो नहीं पता, तो उस पहले सॉल्व करना पड़ेगा. 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल्स एंड total female students is given, that is 32. So if 40% were female, यानी कि this is equal to 40%. और 40% is 2 by 5. So if total students are 5 units, तो 2 units की वैल्यू given है, 2 units हमारा 32 है, तो 1 unit will be 16. So total students will be 80. By 2 by 5 is equal to 32. So 1 by 5 will be 16. So total will be 80. और total 80 है, 32 female है, तो 48 must be male students. So second data use हो गया. First is saying half the students were either excellent or good. यानी कि टोटल में से out of 80, 40 were either excellent or good. So good students are 30, excellent must be remaining 10. And if excellent students are 10, so excellent female students are 0. Okay. Then 1/3 of the male students were average. So total male students are 48, 1/3 of them are average. So that must be 16. And since total is 80, 30 are good, 10 are excellent, so remaining 40 must be average. So 40 are average, 16 are male out of them, तो 24 फीमेल हो जाएंगी. और 16 plus 10 26, तो मेल में 16 plus 10 26, तो गुड स्टूडेंट्स, गुड मेल स्टूडेंट्स विल बी 22 एंड हेंस गुड फीमेल स्टूडेंट्स विल बी 8. तो ये हमारा पूरा डेटा फिलअप हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोथ फीमेल एंड एक्सीलेंट? बोथ फीमेल एंड एक्सीलेंट कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो फीमेल एंड एक्सीलेंट इज इक्वल टू 0. No female student is an excellent student. Option A will be the answer. Second question, how many students were both male and good? Male and good is 22. Option C will be the answer. एक बार डेटा फिलअप हो गया फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. थर्ड वन, among average students, what was the ratio of male to female? Among the average students, ratio of male to female, तो male are 16, female are 24, total is 40, तो 16:24 or basically 2:3 is the ratio of male and female. ऑप्शन डी इज द आंसर. ठीक है, ऑर्डर सही है ना? हाँ ऑर्डर ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 3:2 भी गिवन है, तो ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना. ऐसे केस में कभी कभी उल्टा भी हो जाएगा कि फीमेल टू मेल का रेशियो गिवन हो तो 3:2 होगा आंसर. व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वर गुड? तो फीमेल में कितना प्रपोर्शन हमारा गुड है? तो 8 आर गुड आउट ऑफ 30. व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वर गुड? एक सेकेंड. प्रपोर्शन ऑफ फीमेल दैट आर गुड, तो 32 फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर आउट ऑफ विच 8 आर गुड. 32 में से 8 are good and hence 25% will be the answer. 0.25 percentage of 25%, but in proportion this will be 0.25. Last question, what proportion of good students were male? ठीक है, यहाँ पे कह रहा था फीमेल में से कितना गुड है, यानी टोटल फीमेल वर 32 एंड गुड फीमेल्स वर 8.
और यहाँ पे व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स फॉर मेल, तो टोटल गुड आर 30 एंड आउट ऑफ दोज मेल आर 22, तो 22/30 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच विल बी रफली 75% से थोड़ा छोटा वैल्यू होगा 0.73, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आंसर होगा 0.73। ओके, सो दिस सेट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। और क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि दिस वॉज अ वेरी डूएबल सेट। डेफिनेटली ये सेट इजीली किया जा सकता था एग्जाम कंडीशंस में, है कि नहीं? ठीक है, सो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। Second set, this was also a very doable set. The following table gives the sales details for textbooks and reference books at primary, secondary, higher secondary and graduate levels. फिर हमें डेटा गिवन है फॉर ईयर्स फ्रॉम 75 to 80, 1975 to 1980 फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ रेट? क्वेश्चंस हमारे हैं, 4 क्वेश्चंस आर देयर फॉर दिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स ऑफ बुक्स एट अ प्राइमरी लेवल फ्रॉम 1975 to 1980? ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स फ्रॉम 1975, in 1975 this is 42,000 समथिंग और 1980 में दिस इज 68,000 समथिंग। तो वैल्यूज हमारी बहुत दूर दूर है, 29%, 51%, 63% 163%। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बहुत एग्जैक्ट नहीं जाना है, बस अप्रॉक्सीमेट करना है। तो पहली वैल्यू समथिंग 42,000 और लास्ट वैल्यू इन 1980 दैट इज 68 पॉइंट समथिंग, रफली 69,000। तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 27,000, है कि नहीं? 27 का इंक्रीज किस पे आ रहा है? 42 पे आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 50%, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ग्रोथ पूछ रहा है, ग्रोथ रेट, है कि नहीं? ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ मोर देन 50%, स्लाइटली अपिश फ्रॉम 60%। तो आंसर इज ऑप्शन सी 63%, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इतना दूर है। 163 तो होना नहीं है, क्योंकि 163 तो टोटल हो रहा है। 1975 की वैल्यू का 163% है 1980 में, बट ग्रोथ तो 63% का ही है। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द कैटेगरीज शोज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट फ्रॉम 1975 to 1980? लोवेस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पे है? तो जहां पे हमारा इंक्रीज सबसे कम होगा, ठीक है, रेशियो में, प्रपोर्शन में, वो वहां पे लोवेस्ट होगा, और जहां पे सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वहां पे हमारा ग्रोथ रेट विल बी हाईएस्ट। तो इन केस ऑफ प्राइमरी, इंक्रीज इज फ्रॉम 42 to 68, दैट इज रफली 63%। इन सेकेंडरी दिस इज फ्रॉम 8,000 to 20,000, डबल से भी ज्यादा हो गया, तो मोर देन 100%। इन हायर सेकेंडरी फ्रॉम 65,000 to 82,000, तो रफली 17,000 का इंक्रीज है, विच इज लेस देन 1/3, ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास है। तो वी कैन से रफली 27-28%, तो काइंड ऑफ मिनिमम होगा। लास्ट वैल्यू ग्रेजुएट फ्रॉम 25,000 to 36,000, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 11,000, और 11,000 कितना आएगा? 40% भी 10,000, तो 40% थोड़ा सा बड़ा होगा, स्लाइटली अपिश फ्रॉम 40%। तो क्लियरली मिनिमम ग्रोथ रेट इज फॉर हायर सेकेंडरी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा हायर सेकेंडरी का, देन फॉर ग्रेजुएट लेवल, देन फॉर प्राइमरी लेवल, और लास्ट यानी कि मैक्सिमम विल बी फॉर सेकेंडरी लेवल। थर्ड क्वेश्चन, विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन दैट पीरियड? तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट विल बी फॉर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ऑर्डर भी क्लियर है मैं कि मिनिमम इज फॉर ग्रेजुएट लेवल, देन फॉर हायर सेकेंडरी, सॉरी मिनिमम हायर सेकेंडरी, then graduate, then primary, and last secondary. Last question, which of the categories had either a consistent growth or a consistent decline in the period shown? So that implies कि कौन सा ऐसा कैटेगरी है जहां पे कि हमारा या तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है या फिर कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर सम ईयर्स देयर इज अ ग्रोथ एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन एंड देन ग्रोथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा का सारा ऑर्डर परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, या तो परफेक्टली हमेशा इंक्रीज हो या हमेशा डिक्रीज हो। अब जाहिर सी बात है कि जो भी हमें टेबल में डेटा गिवन है, तो वहाँ पे किसी भी केस में हमारा परफेक्टली डिक्रीज वाला केस तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी 1975 से 80 में इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि कोई एक ऐसा डेटा सेट होगा जहाँ पे कि सारी वैल्यूज हर एक ईयर में, एवरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा। ठीक है, सो देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। प्राइमरी में 42 से 53, देन 53 से 58, देन 56, तो प्राइमरी तो आंसर नहीं है। सेकेंडरी में 8,000 to 10,000 to 16,000 to 15, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो गया। हायर में 65 से 71 से 73 से 71, अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा ग्रेजुएट लेवल होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 25 से 27, 27 से 28, 28 से 30, 30 से 33, 33 से 36, so there is a consistent increase. Option D is the answer, graduate level. So these were the two sets that were discussed, that were in लास्ट ईयर एग्जाम एग्जामिनेशन, और आई बिलीव कि तुम्हें अप्रिशिएट कर पाए होगे कि ये सेट्स बहुत ही डुएबल सेट्स थे एग्जाम कंडीशंस में भी, वेरी डुएबल सेट्स। तो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस इन एग्जाम कंडीशंस इन द सेट्स दैट आर डुएबल। डेफिनेटली कुछ ऐसे सेट मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ट्रिकी होंगे, जो कि डिफिकल्ट होंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, और जहाँ पे तुम अपना टाइम स्पेंड करोगे तो शायद
ऐसे डुएबल सेट्स को नहीं कर पाओ, तो एग्जाम में तुम्हें यही करना है कि अल्टीमेटली ऐसे डुएबल सेट्स को आइडेंटिफाई करना है और फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बाकी सेट्स होंगे वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा डिफिकल्ट रहे होंगे और वहाँ पे फंसने का स्कोप था, और वहाँ पे जो फंस गया होगा वो शायद इन सेट्स पे आने में या तो समय लगा होगा, नहीं आ पाया होगा, या एक दो क्वेश्चन ही कर पाया हो, तो डिपेंड करता है ऑन द टाइम। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सेट्स पे पहले फोकस करना है जो ज़्यादा डुएबल हो। और इसके लिए क्या फोकस करना है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक गलत सेट पे चले गए तो 3 4 5 मिनट के बाद में यू विल हैव एन आइडिया कि ये जो सेट है तुम्हारा ये तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली शिफ्ट टू अदर सेट। ओके, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी अंडरस्टैंड वो सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।